तो आपने सुना नितिन गडकरी को, और ख़ासतौर पर जो एसएमई सेक्टर को लेकर बजट में अनाउंसमेंट किया गया है उसको लेकर बता रहे थे कि किस तरीके का पोटेंशियल सेक्टर दिख रहा है और क्या टारगेट या लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद दिखती है। और अब आप बताते हैं कि इस बजट में क्या कुछ ख़ास अहम बातें कही गई हैं, और यहाँ पर जो 10 बड़ी बातें मैं कहूँ कि क्या हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे स्टूडियो में इस पूरे ओवरऑल बजट को लेकर। अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने की बात बजट में कही गई है वित्त मंत्री की ओर से, और बहुत अहम है कि अन्नदाता ऊर्जादाता कैसे बनेगा और कैसे उसका योगदान होगा, इसको हम समझेंगे। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर घर को पानी की बात, यानी कि जो मिशन शुरू किया गया है टैप वाटर को लेकर, सरकार का एजेंडा है 2024 तक उसे पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है, और उसके लिए एक रोड मैप यहाँ पर दिख रहा है इस बजट में। पाँच साल में 1.25 लाख किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य, और इस दिशा में पहले भी यानी कि पिछले कार्यकाल में सरकार ने रफ्तार पकड़ी थी, उस रफ्तार को और बढ़ाने की बात की जा रही है। पर डे जो सड़क बनाने का लक्ष्य है उसे और बढ़ाया जा रहा है, और ये ओवरऑल अगर बात करें करीब 5 साल में 1.25 लाख किलोमीटर का नया लक्ष्य है जो कि सड़क बनाने का सरकार ने रखा है। Well, let's take a look at some of the key takeaways from Finance Minister Nirmala Sitharaman's maiden budget speech. Now, from $1.85 trillion in 2014, the economy has reached $2.7 trillion, 100 lakh crore for infrastructure over the next 5 years, 70,000 crore rupees to be provided to public sector banks, 17 iconic sites to be transformed into world-class tourist destinations, Aadhaar for NRIs with Indian passport, mission study in India to bring foreign students to India. The government also proposes a new education policy. 80,250 crore for building 12,500 kilometers of roads in the next 5 years have also been proposed. Power and fuel for all by 2020 is the target set, and enhancing the surcharge on taxable income between 2 to 5 crore rupees. और हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं जिनके जरिए समझेंगे। अमन अग्रवाल हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस से, आपका स्वागत है अमन जी। और अश्विनी कुमार जी, असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। विशाल, जिस तरीके से बजट है, और सबसे पहले बात आती है टैक्स को लेकर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर, थोड़ा सा मैं चाहूँगा उस पर शुरुआत की जाए। जी बिल्कुल, और टैक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वी ऑल्सो हैव मिस्टर YG Parande with us from Deloitte India. Mr. Parande, let's begin with the indirect taxes first, because that is something which has been talked about a lot by the finance minister in a speech. So if you look at it in totality, what exactly are the takeaways as far as indirect taxes are concerned? Yeah, I would say that the changes that are proposed in the budget are carrying forward the agenda of the government on number of critical frontiers. Make in India, electric mobility has been talked about. And as you know, with the onset of GST, quite a significant part of the action has shifted from the union budget to the GST Council. Mm-hmm. So an important component of the finance bill this year also are the legislative changes required for carrying out some of the critical decisions that the GST Council has taken. Okay. Things like substitution of the current return system, which wasn't working very well, by a single return, some relief for the smaller businesses, enabling e-invoicing. So these are the things which the finance bill is taking forward. Now the advantage of finance bill is that the central government will be ready to implement these changes as soon as the states have their own legislation in place. Because as you know, now GST is a very symmetrical kind of tax which the states and the center are levying together. Mm-hmm. So that's one
important thing, not many rate-related changes. There are about 100 odd changes. There is some effort at resource mobilization. You had Mr. Gadkari talking about the 1 rupee extra cess that is being imposed on diesel, petrol, etc. Then there are some other customs duty changes for promoting Make in India. So those are the things. Another important component, I think, which I think will get talked about in the time to come, is the Sabka Vishwas, the legacy dispute resolution scheme that has been proposed. If that is implemented well, what is going to happen is that is the whole burden of tax disputes, involving lakhs of crores and lakhs of cases and very significant amount of revenue is going to be a matter of the past, which will release the administration's resources for focusing on proper GST implementation. Okay. Professor Agarwal, if you look at the indirect taxation and the other ambits of the taxation part as well, then there are certain, key incentives which have been given to the corporates. For example, the turnover for 25% corporate tax has been raised from 250 crore to 400 crore. As far as startup angel tax is concerned, also the finance minister sought to go ahead and allay all the fears. So key, demands of the industry seemingly have been reflected in the budget. No, I think it's a very well drafted, developmental oriented budget with a long-term perspective in mind, which she has kept. And she has given respite to a long-term demand of the middle class and the corporate sector. And as she rightly pointed out, almost about 99% is actually getting covered under this 25% bracket, which is a big relief. And she also not only did that, but she also, when reduced customs and other things, is talking about removing the government regulatory framework and bringing out a digital way of enforcing governance instead of, forcing people to get into systems. So I think she has taken major steps which have been outlined in the budget, which will bring respite and happiness not only to in the MSME, primarily to the M and the S, that is the micro and the small, and then the medium coming in, but also to the the angel startups, the angel investors, and large community of the middle class, which will benefit from the framework which has been produced. I think the structure on health, which has been focused on the function of keeping fiscal deficit in control, is critical. And this is where I feel that she's given at the end, before ending, a clear indication to the world at large and India that we're looking at boost, but not at the cost of fiscal spending. And this is something which is very critical for India today. You spoke about MSMEs. There is one more aspect which I'm reading here. The 350 crore have been allocated under interest subvention scheme as well. So that's another push if you're looking at MSME sector. Yes, not only that, but the kind of liquidity influx which she is expected to get in through the banking framework. Although there has been an allocation of raising the requirements of banking and providing the much required fund for them, and also relaxing. There's also barred away with certain predecessing cases of GST, which is also going to help bring out some of these businesses which have been in a soup for a long time. So in my opinion, some of these very strong steps taken by her would actually bring in the India incorporation confidence, and also a confidence from the overseas market when she's relaxed large number of norms in terms of investment when coming into India. Okay. And I think that is something which will not only boost confidence within the country, but even in the international market, where we are receiving almost about $6 billion a month as of today, and hopefully will go up tomorrow. And I feel that this budget is laid the path for a 8.2% plus GDP growth for the same year itself. And I think the confidence can be seen coming from various corners around the globe. Okay. अश्विनी जी, क्योंकि दो तरह से मैं समझना चाहूँगा बजट को, एक तो कंट्री के नज़रिए से और दूसरा इंडिविजुअल नज़रिए से। शुरुआत जब हम बात कर रहे हैं कंट्री के नज़रिए से, आपके हिसाब से क्या बड़े टेकअवेज, क्या बड़ी बातें हैं जो कि देश की आर्थिक दशा को और मजबूती देने और जिस दिशा की तरफ हम बढ़े थे 5 साल पहले जो सफ़र था, उसको कंटिन्यूटी या फिर निरंतरता के साथ आगे बढ़ाने में मददगार होंगे? मुझे लगता है कि इस बजट में हमें एक दिशा ढूंढनी चाहिए, और दिशा है कि किस तरह से विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से ग्रोथ रेट को और इंक्रीज़ किया जा सकता है। एक निवेश को बढ़ाने के बाद जिस तरह से इकोनॉमिक सर्वे में बार बार की गई थी, उसी तरह से बहुत सारे क्षेत्रों में इन्होंने दिशा निर्धारित की है जहां पर कि नया निवेश किया जा सकता है। गांव, ग्रामीण और किसान पर कंसंट्रेट किया गया है, क्योंकि वो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है।
जब तक गांव में आय नहीं बढ़ेगी तब तक आपका कंजम्पशन नहीं बढ़ सकता है। तो जहाँ पर उस क्षेत्र में अगर आप काम करते हो, वहाँ पर चाहे हाउसिंग सेक्टर में आप काम करते हो या आप क्लस्टर सेंटर बनाते हो, वहाँ पर आप दूसरे एरिया जितने भी आप इनकम को जनरेट करने के काम करोगे, वहाँ पर कंजम्पशन का मेजर ड्राइवर है वो। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो जीडीपी है उसमें मेजर जो कंजम्पशन सेक्टर है वो बूस्ट करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर इन्वेस्टमेंट आता है। सो मुझे लगता है कि एक एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत अच्छे से कंसंट्रेट किया गया है। दूसरा, जहाँ तक दिशा की बात है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करने की बात की गई है। और जिस तरह से कहा गया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और जिस दिशा में हम चल रहे हैं, वहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की बात की गई है। और वो माहौल वो पैदा करने की कोशिश की गई है कि जहाँ पर एक पॉलिसी कंसिस्टेंसी भी है और उसके साथ साथ वहाँ पर एक विश्वास पैदा करने की बात है कि आप भारत में आइए, सिर्फ मेक इन इंडिया के लिए नहीं है, आप सर्विसेज में आ सकते हैं, आप बहुत सारे क्षेत्र में आ सकते हैं, चाहे टूरिज्म है जहाँ पर इनकम के बहुत सारे सोर्सेज है। तो उस दिशा से अगर मैं कहूँ तो चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे सर्विसेज है, चाहे वो इंडस्ट्री है, एक दिशा दी गई है कि इन्वेस्टमेंट जरूरी है और उसके लिए सरकार ने उसमें बहुत सारे प्रावधान बजट में किए हैं। ओके। और इस वक्त फिक्की से हमारे साथ एक मेहमान है, प्रोफेसर वी.के. शर्मा जी हैं, जो कि को-चेयर हैं फिक्की कमेटी ऑन ह्यूमन डिजास्टर मैनेजमेंट में, और साथ ही साथ वाइस चेयरमैन हैं सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से। वी.के. शर्मा साहब, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। सर, जो हमने अब तक देखा बजट और समझने की कोशिश की है, और आपके नज़रिए से और ख़ास तौर पर जो हम दिशा की बात कर रहे थे, डायरेक्शन की बात कर रहे थे, वो क्या नज़र आ रहा है? क्या बड़े फैक्टर इस बजट में दिखते हैं जो कि ग्रोथ रेट को आगे बढ़ाने और सस्टेन करने में क्रूशियल नज़र आएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बजट फ्यूचरिस्टिक बजट है और ये कंटिन्यूएशन है जो मोदी गवर्नमेंट का जो 5 साल में आपने देखा उसी का, और जो वायदे किए गए इलेक्शन में, जैसे कि किसानों के लिए, जैसे कि छोटे रोज़गार जिन लोगों के हैं, मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत सराहनीय हैं। जैसे कि एनवायरनमेंट सेक्टर में पोल्यूशन के कंट्रोल के लिए अभी आप देख रहे हैं कि जितने भी बड़े सिटीज़ हैं वो सब गैस चैम्बर बन जा रहे हैं, तो और नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं हर सिटी में। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर इंसेंटिव, जो हाउसिंग फॉर ऑल जो इनकी प्रधानमंत्री का संकल्प है, उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं, जो छोटे रोज़गार हैं, जो दुकानदार हैं बेचारे, और करीब 3 करोड़ लोगों के लिए पेंशन की योजना। मैं समझता हूँ कि मैं यूरोप की बात तो नहीं करता, पर एशिया के शायद ही किसी मुल्क में ऐसा हुआ हो, और ये सोशल सेक्टर का एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी कदम मैं तो इसको कहता हूँ, और इसका बहुत फ़ायदा होगा जो गांव में बेचारे दुकान करते हैं, जो छोटे कस्बों में दुकानदार हैं और उनका तो कोई सोशल सिक्योरिटी उनकी नहीं है, तो उनके लिए, किसानों के लिए, आई थिंक एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत। तो अभी इसको अगर आप इस तरह से देखें कि आज इसको अगर नापें कि किस तरह का बजट था तो वो शायद मुश्किल होगा, बट अगर आप इसको 2-3 साल के बाद में इसका इम्पैक्ट देखें तो वो बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। और मैं समझता हूँ कि इसमें एक आम आदमी को, और वो शुरुआत में ही हमको दिखाई दे रहा था जबकि वो ब्रीफ केस की जगह झोले की बात की गई, जब बही खाता इसको कहा गया, तो मैं समझता हूँ कि वो इंटेंशन है गवर्नमेंट की कि हर आदमी को भागीदार बनाने के लिए सर्वांगीण विकास जिसकी प्रधानमंत्री बात करते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बिल्कुल अपेक्षा जैसे हम लोग कर रहे थे बजट से, बिल्कुल उसी तरह का बजट है। और इसमें ये तो सही है कि लोग बाग अपेक्षा करते हैं टैक्स में छूट की, और कॉरपोरेट सेक्टर भी बहुत अपेक्षा कर रहा था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पर्यावरण की दृष्टि से, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की दृष्टि से, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे, उसकी दृष्टि से, महिलाओं के लिए, ये एक सबको एक साथ लेकर के
इन्होंने जो बजट दिया है, तो मैं तो समझता हूँ कि जो एकेडमिक सर्कल है वो तो इसकी बहुत सराहना कर सर, क्योंकि जब हमने बात की शिफ्टिंग की, इकोनॉमिस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल और इसकी तरफ सरकार का बहुत ज़्यादा इस वक्त मैं कहूँ कि फोकस दिख रहा है, और बजट में भी हमने देखा कि पॉलिसी के मैटर पर इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। कैसे आपको लगता है कि इसको अगर हम ग्रो करना है, पार लाना है, जो इस वक्त हम देख रहे हैं भारत में हालात हैं, चाहे पोल्यूशन को लेकर हो या फिर पेट्रोल डीजल व्हीकल की बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट करने की बात हो, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन सरकार की उम्मीद भी दिखती है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इस पर आना होगा, कहीं ना कहीं उसे हाथ बढ़ाना होगा। इसे कैसे देखते हैं? प्राइवेट सेक्टर इसमें किस तरीके का रोल आपको नज़र आता है, और क्या वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से अब तक आगे आ पाया है? नहीं, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर सभी को इसमें, चूंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप कितनी भी ग्रोथ कर दें, जीडीपी ग्रोथ आपकी 10% भी हो जाए, और आपके स्वास्थ्य में इस तरह की जो रिपोर्ट्स आप दिल्ली के लिए देखते हैं, मुंबई के लिए देखते हैं, जो आप बताते हैं कि बच्चे जो हैं वो 85% जो न्यूली बॉर्न हैं वो उनके फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी कम है। तो अगर इस तरह का पर्यावरण हम दे रहे हैं तो फिर वो सर्वांगीण विकास नहीं है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कदम ये है, इसमें इंसेंटिव के बिना ये नहीं होता। तो अच्छे इंसेंटिव दिए गए हैं, और आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। जैसे कि आपने सीएनजी और इसका देखा था दिल्ली में, बिल्कुल उसी तरह की ये प्रयास है जी। और मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ कि भाई एक पर्यावरण को पहली बार जो है इतना बढ़ावा हम लोग, और उसको प्रायोरिटी पे मतलब एक तरह से रखा गया है, ये चीज़ देखने को मिलती है। जी जी। Professor Agarwal, if you're looking at the social sector, as our guest also mentioned just now, you also earlier mentioned there's this announcement of pension benefit for 3 crore retail traders. Then the talk in the budget about providing access to safe and adequate drinking water to everybody, Jal Shakti mission, a lot of focus on that. Then carrying forward the Ujjwala Yojana, and further carrying forward the Swachhta Abhiyan as well. All these aspects clearly indicate the government's intentions to carry further what was done for the last 5 years. Correct. It's not only carrying forward, but it's also giving that social face which the budget has reflected this time, and uplifting people with the clear focus of which the Prime Minister also said a couple of months back when the government came in, of poverty eradication, of defecation, of water being the key source, because unhealthy India is not going to yield real results for tomorrow. And I think the health of the nation is critical. So people at the end, the smallest town, receiving proper water is critical for them to grow. I think it's very well defined in structures. Even the Ayushman Bharat scheme, the exchequer's outcome for the Ayushman Bharat will reduce if we are able to introduce some of these basic schemes which the government is wanting to do. And actually she has looked at it from the women's perspective. You see, if you really look at countries or even households or businesses which have been run by women, we found that they have a holistic picture of looking at things. And that holistic picture can be seen here, where everyone is given its due structure and rights. And I think she has tried to provide and develop that structure, being a woman herself, how to balance out, because this country also is a home in a way. It's not, whether running a smaller home or a larger family, a joint family, or a country like India, it's like a home with every structure having different structures, different layouts. From that perspective, I feel this social phase, and even if you look at the World Economic Forum which took place recently in the summer Davos in China, there was the AI talk, but again there the focus was not in silos but looking at the framework of human capital capacitation, and that's where she's provided for skill development, she's provided for empowering people to go forward, looks, and not Rozgar from the government per se, but Rozgar earning, living well. And I'm happy that the economic survey brought out this figure where we see that around in 2014 the per capita income was about 80,000 rupees, 84,000, 85,000 rupees per person, whereas now it is 1,26,000 per person. Now this clearly shows that because it's the denominator is the total population, that we are not only seeing growth in terms of GDP numbers, but people across the country are feeling the benefits of the growth, and the social sector framework
which is being introduced by this government in the last 4-5 years. जी प्रोफेसर कुमार, इसी में अगर सोशल सेक्टर के साथ साथ अगर हम नज़र डालें, थोड़ी सी शिक्षा के क्षेत्र पे भी नज़र डालें, हेल्थ के बारे में प्रोफेसर अग्रवाल ने बात की, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी घोषणाएं की गई हैं। 400 करोड़ एलोकेट किए गए हैं एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हायर इंस्टीट्यूशन उनको बनाने के लिए। स्टडी इन इंडिया स्कीम की बात की गई है, ताकि एक जो शिक्षा का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी एक स्तर उसका जो है उसको बढ़ाया जा सके। बिल्कुल सही है। 130 करोड़ के लोगों के देश को आप तब तक नहीं बढ़ा सकते जब तक आप उनमें निवेश नहीं करते हैं। और जहाँ तक शिक्षा और स्वास्थ्य की बात है, जब तक हम ये अच्छा नहीं करेंगे, आप जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं वो हम कैप्चुलाइज नहीं कर सकते हैं जब तक हम इनमें निवेश नहीं करेंगे। हेल्थ में सरकार ने पिछले से बहुत काम किया है और एजुकेशन में भी लगातार काम कर रहे हैं। ड्राफ्ट पॉलिसी एजुकेशन की नहीं आ रही है, उसके साथ साथ जो इन्होंने कहा कि हम जिस तरह से रिसर्च को अंडर ग्रेजुएट में प्रमोट करेंगे, जिस तरह से बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट हैं उनको रिसर्च हब बनाएंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर लेकर के चलें, जहाँ पर हमें लगता है कि इंडस्ट्री और एजुकेशन में कहीं ना कहीं स्किल सेट का मिसमैच है। अगर आप एजुकेशन को जब तक इंडस्ट्री ओरिएंटेड नहीं करोगे, जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो रेलेवेंट है इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, तब तक हम उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैप्चर नहीं कर सकते। तो एनआरएफ की जो गठन करने की बात की गई है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एनआरएफ की गठन की बात की गई है, जिस तरह से जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने के लिए जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, IITs हैं, उनके बारे में बात की गई है। ये बहुत जरूरी है। जिस तरह से पूरा वर्ल्ड मूव कर रहा है, हम पीछे नहीं रह सकते हैं और 130 करोड़ लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है शिक्षा में निवेश करना, और मुझे खुशी है कि इस क्षेत्र में सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। जहां तक आप कह रहे हो भारत को एक हब बनाना चाहिए, अगर भारत से जिस तरह से लोग पढ़ने के लिए विदेशों में जाते हैं, आप फॉरेन कैपिटल का भी लॉस हो रहा है, आपका डॉलर की डिमांड और बहुत सारी चीजें हैं, तो क्यों ना ऐसा हो कि अगर विश्व से ना सही तो एशिया से कम हमारे देश में पढ़ने के लिए लोग आना स्टार्ट करें। तो क्या हम उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या उस लेवल की एजुकेशन हम दे सकते हैं? मुझे लगता है इस बजट में वो दिशा दिखाने की कोशिश की गई है। अमन जी, इसमें चैलेंजेस भी काफ़ी दिखते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन या टाइप की बात कहूँ, वो क्या चैलेंजेस आपको नज़र आते हैं? और इस बजट में एक आउटलाइन ज़रूर है, लेकिन साइड में कहूँ इसके साथ साथ क्या बड़े स्टेप्स और आगे लेने होंगे? मेरे विचार में 2-3 आपने बड़ी अच्छी बात करी। जहाँ तक इंटरलॉकिंग होता था स्टेट्स का, जो एक स्टेट और सेंटर के बीच में तालमेल था, देखिए हर एक अब इस समय जो स्टेट है वो चाहती है कि मैं प्रगति की तरफ जाऊं, और जो ये प्रगतिशील जो बजट दिया है, इसमें जब निवेश आएगा तो सिर्फ एक हिंदुस्तान सेंटर में तो नहीं आएगा, वो निवेश तो सब स्टेट्स में ही जाएगा। तो स्टेट्स की बढ़ोतरी की बात की गई है, स्टेट्स के निवेश की बात की गई है, चाहे इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे कॉरिडोर्स हो, चाहे वाटरवेज की बात की हो, उसके अंदर हो, ये जो रिसर्च सेंटर्स क्रिएट करने, जब बच्चे बुलाने की बात है, वो बच्चे सारे देश में आएंगे पढ़ने के लिए। मेरे को याद बड़ी अच्छी चीज़ लगी, बिकॉज मैं 20 साल से इटालियन पार्लियामेंट में कहा, फिनलैंड पार्लियामेंट में कहा, स्वीडिश पार्लियामेंट में कहा, मैंने कौटिल्य की बात की, अर्थशास्त्र की बात करी, और मैं देखा कि कल इकोनॉमिक सर्वे जो आया, और आज भी निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि अर्थशास्त्र की बात की उन्होंने दोबारा। अब हम पुराने जो हमारी नीतियां थी, स्ट्रक्चर थे, जहां पे सबको लेके चलने की बात थी, हम सिर्फ सबका साथ सबका विकास नहीं, पर सबका जो योगदान है उसकी भी अब जो बात करने लगे हैं इस बजट के अंदर, वो देखने में आई है। और मेरे विचार में जब हम ग्रोथ की तरफ बात करते हैं, डिफरेंसेस तब पैदा होते हैं जब हम ये लेके चलें कि मैं ग्रो करूंगा, तुम ग्रो नहीं करोगे। पर इस बजट में हमें देखने को मिला, इन्होंने सब तरफ के सेक्टर्स को इक्विटेबल स्ट्रक्चर से बेसिस पे डेवलप करने की कोशिश की है। तो इसमें मेरे विचार में वो जो मतभेद थे सरकार और जो फेडरल स्ट्रक्चर में, जब सरकार हो या सेंटर हो, उसके अंदर जाते थे, मेरे विचार में वो नज़र नहीं आते हैं। और इससे जो बढ़ोतरी होगी सिर्फ सारे प्रांतों की जो सरकार ने किए हैं, जो बच्चे इन्वेस्ट करने की बात है, मेरे को याद तक्षशिला और नालंदा की भी बात की, इकोनॉमिक सर्वे ने लास्ट कल जो है, पहले मैंने ही बात की, उसमें 10,000 बच्चे होते थे और 2,000 स्कॉलर्स होते थे। आज से 320 2500 साल पहले हिंदुस्तान में जब लोग आ सकते हैं विश्व से, तो आज के समय में जब इंडियन एजुकेशन सिस्टम आज भी बड़ा अच्छा माना जाता है विश्व के अंदर, और यहाँ का जो पढ़ा हुआ है सारे विश्व की GDP को ग्रो कर रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, UK हो, यूरोप हो, तो हिंदुस्तान में आज क्यों नहीं? और मेरे विचार में जो रिकग्निशन किया इन्होंने, इसका मतलब यह है कि जो
अटकलें लगती थी कि किसी बाहर वाले आदमी को पढ़ने के लिए। ये किसी एनआरआई निवेश की जब बात की उन्होंने, उसमें उन्होंने रिकॉर्ड किया कि हाँ जी, आप सिर्फ पासपोर्ट नहीं, हम आपको आधार भी देंगे ताकि आप रुक सके। इसका मतलब क्या है कि जो बाहर हिंदुस्तानी रह रहे हैं वो अब सिर्फ पढ़ने के लिए तभी नहीं आ सकते जब उनको वीजा मिले, पासपोर्ट मिले और चीजें हो, पर अब वो कह सकते हैं कि मैं भी हिंदुस्तान से था कभी और अब मैं हिंदुस्तान में जाके वापस पढ़ के अपना क्षेत्र में, चाहे हिंदुस्तान में चाहे बाहर के देशों में, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता हूं। जी। Mr. Parande, I'd like to bring you in here, and if you look at, since we're talking about the social sector, if you look at overall social sector focus, the way the finance minister has spoken about education, health, clean drinking water to everybody, and a focus on cleanliness as well. So all these clearly indicate that there is that sense of balance which has been maintained in the union budget when you speak about all sectors, as Professor Agarwal is pointing out. Yes, of course. And for funding all those schemes, revenue mobilization is very, very critical. Now, as far as customs is concerned, there is a effort of mobilizing revenue, at the same time subserving the other themes that have been put forward. Themes like Make in India, enhancing the value addition that happens in India. So there is a general concern globally about the rising protectionist instinct, So one has to strike a balance. And given our current fiscal situation, I cannot say that, the balance has been off on one side or the other. But going forward, customs, particularly customs, would not be seen as a major resource mobilizer. But we do need to stabilize the GST so that the revenue potential of that revolutionary step is fully realized. So a large number of administrative, which are really off-budget activities, a large number of administrative reforms are required in the GST implementation, GST structures, GST institutions, which will, create an environment in which the taxpayer feels comfortable and has the ability to achieve his compliance with the help of government and at low cost. Okay, so it's all about creating that enabling environment, Kavindra, and as everybody is putting together, but Professor Agarwal, Mr. Parande put it out rightly that the revenue earning specifically to spend money for all these social sector welfare schemes and put money there so that the common man can have those effects. That also needs to be taken care of. So there has to be that, overall holistic aspect of looking at this. No, I think you're very right, and what he said is correct. You have to have, when you have expenses going on, you have to have incomes as well. But when you look at the budget in terms of GST also, she has not only specifically set out where they are going to reduce some GST, although GST is now an outside domain, but she's given an indication to the fact that we're not only simplifying GST filation for the small and medium size. She says we are even providing softwares, so they don't need to spend money in terms of getting the software and be worried about how do I go and look in GST. The third component she also said is we're going to simplify, and we saw a few days back a statement by the person no less than who's heading as the chairman of the GST Council, being the Finance Minister Shri Arun Jaitley ji, where he said we are planning to merge two of the out of the four slabs, two of them they are planning to merge and reduce or whatever. So we are looking at moving towards three, which has been one of the biggest demands of the industry. And I think if that happens, I think we are going to see, and those relations once the GST Council meeting takes place, we'll see much more relief. You see, when you have more revenue coming, which has been the case in the last couple of quarters in terms of GST revenue, you want to reduce taxes, because the purpose of the government is not to tax and keep money as an exchequer, but it is to facilitate the functionality of the governance. And now if you're getting sufficient money, why not reduce? And when there's reduction, you have more and more people coming in wanting to pay, and structures are being created. And I think the Aadhaar as a framework will be one of the largest enabling factor, not only for GST but for other income frameworks which will go into this country in terms of bringing in that revenue, that 1 rupee which goes in and goes out, really coming forth for this country. और सोशल सेक्टर क्योंकि फोकस पहले भी सरकार का था और चुनाव के बाद या चुनाव के दरमियान भी काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा हो रही थी। बजट में जिस तरीके से कई सारी स्कीम्स को बढ़ाने की बात की है, दायरा बढ़ाने की बात हो रही है, महिलाओं पर ख़ास तौर पर जोर है, किस तरीके से देखते हैं और उसका जो एलोकेशन है, जो शुरुआत की जा रही है, वो कितनी मजबूत शुरुआत नज़र आती है या इससे ज़्यादा बेटर हो सकती थी जो हम वित्त देखते हैं सरकार के पास है?
देखिए, अगर हम ये मानकर चलें कि मुझे राजकोषीय घाटा 3-3.5% की रेंज में रखना है, उसको भी कंट्रोल करना है ताकि इंटरनेशनल मार्केट में कुछ गलत मैसेज ना जाए और भारत के भी जो मार्केट है, बॉन्ड मार्केट पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उस चीज़ का ना हो। उन लिमिटेशन के साथ अगर आप देखेंगे तो हम सोशल सेक्टर पर स्पेंड कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें कि बिना किसी टैक्स को इंक्रीज किए हुए हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में जिस तरह से जीएसटी पर शिफ्ट हो रहे हैं और वो बजट से बाहर हो रही है, तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा जो इस बजट की जो अचीवमेंट मान के चलूंगा, लोकप्रिय घोषणाओं से बाहर निकाला है इसको। और उन्होंने कहा कि हम एक कंक्रीट एक सिस्टम बना रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में वर्क करेगा। और इसीलिए जब वो महिलाओं की बात कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी देने की बात कह रहे हैं, या वो दुकानदार और शॉपकीपर्स के लिए बात कर रहे हैं कि उनको पेंशन देने की बात कह रहे हैं, तो जो भी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेगा उसके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी, उसके लिए बेस बना रहे हैं। और कहीं वो कुछ पीछे छूटता है तो उसके लिए सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए उस मायने में अगर आप देखोगे तो सबको साथ लेकर के चलने वाला बजट मुझे लग रहा है। जहाँ तक और जितनी भी योजनाएं हैं जो सोशल सिक्योरिटी से लेकर के हैं, उनमें सरकार निरंतर अपना अमाउंट बढ़ा रही है। और उसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं है कि बजट में हमने इस बार पिछले साल की तुलना में इतना बढ़ा दिया, वो जरूरत के अनुसार कर रही है। तो जिस क्षेत्र में जहां जरूरत होती है उसको सरकार खर्च कर रही है। और जिस तरह से सोशल सेक्टर को हम देखते हैं, एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, एक तरह से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आप उसको कह सकते हो। तो जब तक हम उन क्षेत्रों में काम नहीं करेंगे, हम सबको साथ लेकर के नहीं चल पाएंगे। तो मुझे लगता है बजट उस डायरेक्शन में बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अमन, कैसे देखते हैं सरकार के बजट को और सोशल सेक्टर? मेरे विचार में सबका योगदान इस वित्त मंत्री ने मांगा है कि सब लोग आइए, ज्वाइन करिए। टैक्स के ब्रीफ का भी कहा है कि अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, जो एमएसएमई सेक्टर के लिए कहा गया। मेरे विचार में हर एक क्षेत्र को देखते हुए उन्होंने कहा है कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, गवर्नेंस भी कम करना चाहते हैं। मगर आप लोगों का अगर योगदान नहीं होगा, आपका अगर मिलाप नहीं होगा सरकार के और सरकार के विचार के साथ और हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान की प्रगति के साथ, तो मेरे विचार में चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और ये जो एक अपील पहली बार वित्त मंत्री ने जनता से की है, ये एक अनोखा चीज़ है। हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर्स करते आए हैं, होम मिनिस्टर्स करते आए हैं, और भी सारे मिनिस्टर्स करते आए हैं ये अपीलें, बट वित्त मंत्री ने कभी इस टाइप की अपीलें नहीं की हैं। और ये दिखाया है कि देखिए, हम पहले लगा रहे थे कुछ कर, हम वो हटाने को तैयार हैं। हमने कुछ पेनल्टी लगाई हैं, वो भी हम खत्म करने को तैयार हैं। अगर कुछ मनमुटाव है सरकार के साथ किसी वजह से, उसको हम रिजॉल्व करने को तैयार हैं। ये भी उन्होंने इंडिकेशन दिया कि हम ह्यूमन एलिमेंट को जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आता है उसको भी हम खत्म करने को तैयार हैं एआई की बदौलत। मेरे विचार से एक ये जो दिशा दी गई कि हम आपके विचार को, आपकी विचारधारा को, आपके हिंदुस्तान के प्रति जो कंट्रीब्यूशन रही है ग्रोथ के प्रति, उसको मद्देनजर रखते हुए हम जो चाहते हैं उसको बढ़ोतरा देना चाहते हैं और हम आपके साथ हैं, हम आपके विरुद्ध नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। एक ये जो धारा है मेरे विचार में एक आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ आज के देश में टाइम पे हिंदुस्तान विश्व में रखता है, जो प्रधानमंत्री जी अभी G20 के समिट में गए, बड़ी अटकलें लगी हुई थी ट्रेड को लेके, ये क्या होगा क्या नहीं होगा। जिस तरीके से प्यार और प्रॉस्पेरिटी की बातें हुई, चाहे वो जय के थ्रू हो, चाहे रिक के थ्रू हो, चाहे ब्रिक्स के थ्रू हो, चाहे ये एक जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी के प्रति और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के प्रति जो प्यार भावना जगी है, मेरे विचार में ये इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ है। ये अब हिंदुस्तानी के ऊपर है कि कैसे वो अब सोने की चिड़िया हिंदुस्तान माना जाता था, अपने दिल में उसको जागरूक करे और हिंदुस्तान को जैसे सोने की चिड़िया जानी जाती थी, विश्व से लोग आते थे, हर एक काम के लिए आते थे, मानते थे, उसके माल को मानते थे, किस तरीके से निर्धारित करके उसको उत्पाद करें। चलिए, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, कुछ और नए मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और बजट के पहलुओं को समझेंगे और ख़ास चर्चा होगी स्टार्टअप और एसएमई सेक्टर को लेकर, किस तरीके से बजट में इनके लिए सुविधाएं या फिर योजनाओं की बात कही गई है और जो लक्ष्य तय किए गए हैं उनका रास्ता कैसा होगा।